Hello students, welcome to Study from Home, our program initiated by Kanamakan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes directly from our home. ठीक है, तो in this video, we'll be discussing about the chapter Formation of Company of 11th Standard Business Studies. In terms of your future commercial life, this chapter is quite important for you guys. अब बात यह है कि टॉपिक पे आने से पहले फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग. Whatever we read, everything must have with its connection with our life, because it's my personal thought. If anything what you are studying is not having any personal relation with your life, then there is no need to study that. अब मैं एज ए टीचर ये बात कैसे बोल सकता हूँ? ठीक है, फिर तो आप बोलेंगे सर आपका सब्जेक्ट भी हमारे रियल लाइफ में कितना काम आता है. बेटा आपकी लाइफ नहीं है बिना इन सब चीज़ों के. ठीक है, क्योंकि these are the foundation of your MBA, because as per the as you guys are commerce students, so definitely you will be going for the accountancy stream, you will be going for some manager and all. So वहाँ पे आपके ये सारे कंपनी लॉ, ये सारे इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती है. एंड फ्यूचर में आप कहीं भी काम करें, एंड आई एम डैम श्योर कि कॉमर्स स्ट्रीम में एटलीस्ट 60% स्टूडेंट्स आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर MBA. ठीक है, रिमेनिंग BCom एंड MCom, एंड उसके बाद बचेंगे तो वो CAs एंड ऑल. तो ये सारी चीज़ें आपके फ्यूचर करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं. सो इन सारी चीज़ों का मतलब क्या था? इन सारी चीज़ों का मतलब ये था, वी नीड क्वेरीज. योर क्वेरीज विल सपोर्ट अस, योर कमेंट विल एनकरेज अस, बिकॉज इन दिस टाइम ऑफ वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक वी नीड योर सपोर्ट, बिकॉज वी आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम समथिंग दैट इट्स वेरी हार्ड टू टेल. But still we are giving and we are trying our best. Your school is trying its best to provide you classes. Every single day school is struggling with some of the major problems, technical faults and all, and still we are here in this scenario. So what's your responsibility? Your responsibility is nothing. You don't have to worry about what struggle we are doing and what the school is going through. All you have to worry about, just ask questions, because we are here, we are working for you guys. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमने जाना कि हाउ टू फॉर्म अ कंपनी एंड व्हाट आर द स्टेजेस व्हेन इट कम्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी. बेसिकली 3 स्टेजेस आर देयर: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ कैपिटल. ठीक है, एंड प्रमोशन के बारे में बात की थी हमने. प्रमोशन क्या था? प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग द बिजनेस आइडिया फ्रॉम इमेजिन टू इट्स प्रैक्टिकल शेप. And who is the person who does this activities? That person is the promoter. And after that, in the previous video we studied about functions of promoter, how promoter does functions for a company by name approving, by signing up authorities, and there were so many functions of the promoters. Last में promoter में एक function आया था, वो function था preparation of necessary documents. कंपनी के लिए डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट रहती है. ठीक है, और वो डॉक्यूमेंटेशन जो प्रमोटर का फंक्शन था, वो डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं ये मैंने आपको वीडियो में डिस्कस किया था. वो डॉक्यूमेंटेशन था आपका MOA एंड AOA. MOA स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम of association, and AOA stands for article of association. These two are the major documents when it comes to the formation of company. अब the question is, what is the difference between memorandum of association and article of association? The basic difference between the memorandum of association and article of association means, this is the document that is needed for external purpose. जो memorandum of association होता है ना, इसकी requirement क्यों होती है? ये external purpose के लिए होता है. यानी कि memorandum of association will have to be submitted to the registrar of company. ये memorandum of association कहाँ submit होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास. ठीक है,
आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें कंपनीज के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, उसके नेम से लेके उसके कैपिटल फॉर्मेशन तक, ठीक है। और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है, अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज द डॉक्यूमेंट दैट इज यूजुअली यूज्ड फॉर द इंटरनल वर्किंग ऑफ एनी फर्म एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर जनरल पब्लिक। इसका जस्ट सपोज कर दीजिए यह आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम एलैबोरेटली बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जैसे हम बात करते हैं किसके बारे में, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो एग्जैक्टली व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है एक लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल नेसेसरी डॉक्यूमेंट। इसके बिना कंपनी आपकी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। विदाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज नॉट पॉसिबल लीगली फॉर अ फर्म टू कम इनटू एग्जिस्टेंस। रीजन क्या है? बिकॉज वॉट एवर द ऑब्जेक्टिव्स, वॉट एवर द रीजन दैट फर्म इज फॉर्म्ड, यानी कि आपकी कंपनी फॉर्मेशन का एक रीजन होता है, ठीक है। वो रीजन आपका रीजन एंड आपकी कंपनी के ऑब्जेक्टिव ये सब लिखे होते हैं आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है, विदाउट द हेल्प ऑफ इट कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो पार्ट होता है दैट कम्स अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 56, ठीक है, कि without filing the memorandum of association to registrar of companies, it is not possible for a company to come into existence, ठीक है। तो ये तो था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब इजीली आप पूछेंगे सर वी नीड टू एक्सप्लेन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इन द एग्जामिनेशन, हाउ डू वी एक्सप्लेन इट? तो मेमोरेंडम of association is the legal document that is most necessary for the existence of a company as per the section 2 subsection 56 of Indian Companies Act 2013. A memorandum of association contains the name, contains the objective, contains the capital and other information of the company that is available for general public. That's it. ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डिफाइन। दैट्स हाउ वी डिफाइन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं कि मेमोरेंडम एसोसिएशन के रिक्वायर्ड कॉलम्स कौन कौन से होते हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग जो मेमोरेंडम एसोसिएशन में होते हैं, मेमोरेंडम एसोसिएशन में क्लॉज होते हैं, ठीक है। उन क्लॉज को फुलफिल करना पड़ता है, देन ओनली हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम प्रिपेयर कर पाते हैं। द वेरी फर्स्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द नेम क्लॉज, ठीक है। अब आपको ध्यान हो कि नेम अप्रूवल का काम किसने किया था? नेम अप्रूवल का काम कर दिया था प्रमोटर ने, यानी इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रमोटर दैट ही गेट्स द अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ व्हाट नेम ही इज गोइंग टू गिव टू हिज कंपनी एंड ऑल, ठीक है। एंड जो भी नेम की रिक्वायरमेंट थी वो नेम अप्रूवल होने के बाद पहली चीज जो मेमोरेंडम एसोसिएशन का पार्ट होगी वो होगी आपकी नेम, कि क्या नेम उस कंपनी को दिया गया है। एंड पहला वाला जो पार्ट है वो है आपका द नेम क्लॉज, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ फर्म। इसके बाद जो पार्ट आता है वो आता है सेकंड, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ होगा, कंपनी का ऑफिस कहाँ होगा, यानी कि HQ और ऑफिस ऑफ द कंपनी, HQ और ऑफिस ऑफ द कंपनी। लेकिन आप में से कुछ बच्चे पूछ सकते हैं सर कंपनी हमारी फॉर्मेशन की स्टेज है, यानी वो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो एड्रेस कैसे दे दें? देखिए देयर इज नो कंपल्शन, यानी कि कोई कंपल्शन नहीं होता, नो कंपल्शन फॉर एग्जैक्ट एड्रेस। आपको एग्जैक्ट एड्रेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट स्टेट का नाम दे दीजिए, शहर का नाम दीजिए, दैट इज इनफ। लेकिन आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करने के 30 डेज के अंदर क्या देना पड़ेगा?
एग्जैक्ट एड्रेस देना पड़ेगा। और ये किसको देना पड़ेगा आपको? ये देना पड़ेगा आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है, ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो पहला क्लॉज था नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में होता है आपका नेम ऑफ द फर्म। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस में होते हैं आपके हेडक्वार्टर ऑफिस के एड्रेस। एग्जैक्ट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, बिकॉज आपकी कंपनी फॉर्मेशन की स्टेज में है, लेकिन 30 डेज के अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द परमानेंट एड्रेस ऑफ योर ऑफिस, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस ऑफ योर ऑफिस, और ये सब सबमिशन होगा आपका कहाँ पे? रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि वॉट एवर द थिंग्स दैट यू हैव डिसाइडेड वाइल द फॉर्म, वाइल यू हैव आइडिया ऑफ द कंपनी। हर कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप किसी भी ऑटोमोबाइल का ले लीजिए, आप रिलायंस जियो का ले लीजिए। रिलायंस जियो का क्या ऑब्जेक्टिव था? रिलायंस जियो का ऑब्जेक्टिव था इंडिया में हर जगह, शहर से शहर, गांव से गांव में 4G इंटरनेट अवेलेबल कराना। एंड यस, उन्होंने ये किया, एंड ये चीज उन्होंने की है, दैट विल बी डेफिनेटली पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्लॉज। Objective clause in the memorandum of association states the reason of existence of the company and what kind of activities they are going to be indulged in। and कोई भी कंपनी, ठीक है, अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज से बाहर जाके काम नहीं कर सकती। यानी कि ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिख रहा है कि हम इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे, हम सिम अपनी लेंगे, हमारा टेली कम्युनिकेशन का काम है, लेकिन उसकी जगह आपने क्या किया? उसकी जगह आपने बिस्किट बनाना चालू कर दिया। तो ऐसे में गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी एंड आपकी कंपनी को क्या कर देगी? बैन कर देगी, वहीं बंद कर देगी, सीज कर देगी, ठीक है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्लॉज है वो है आपका लायबिलिटी क्लॉज। अब लायबिलिटी क्लॉज क्या होता है? लायबिलिटी क्लॉज मींस इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन MOA, ठीक है, हमें उन सारे अनपेड शेयर्स, अनपेड जो अमाउंट है, अनपेड शेयर्स की जो है वो इन्फो देनी पड़ती है। अब कैसे अनपेड शेयर की इन्फो देने का क्या मतलब है? अनपेड शेयर की इन्फो देने का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए कि आपकी कंपनी का शेयर कितने का है? ₹10 का पर शेयर है, ठीक है। और किसी ने क्या किया? किसी ने ₹10 के कितने शेयर खरीदे? 10,000, ठीक है। अब ये कितना हो गया? ये हो गया आपका ओवरऑल 1 लाख रुपीस। लेकिन 1 लाख रुपीस की जगह जो अमाउंट पे हुआ है, जो अमाउंट पेड है वो है आपका 60,000, ठीक है। जो अमाउंट पेड है वो क्या है? वो 60,000 है। तो लायबिलिटी कितनी बनी शेयर होल्डर्स पे? जो लायबिलिटी बनेगी वो कितनी होगी? वो होगी 40,000, जो किसी भी समय किसी समस्या में उसके शेयर होल्डर से वसूली जा सकती है। ऐसा क्यों किया जाता है? जिससे कि शेयर होल्डर बाद में कंपनी को नुकसान होने के बाद हाथ खड़े करके नहीं चला जाए कि भैया नहीं, हम तो इतने नुकसान में हमें इतना नुकसान एक्सेप्टेड है। तो ये लायबिलिटी क्लॉज है, यानी कितनी लायबिलिटी आपकी कंपनी क्रिएट कर रही है मार्केट में, ये चीज़ ही बताना रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो लास्ट क्लॉज कौन सा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का? लास्ट क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज का क्या मतलब है? देखिए, हमें पता है कि जॉन स्टॉक कंपनी में क्या होती है? वो होती है शेयर होल्डिंग, ठीक है। और कितना अमाउंट आप शेयर होल्डिंग से कलेक्ट करेंगे एज द इन्वेस्टमेंट, दैट यू विल हैव टू डिक्लेयर इन द मेमोरेंडम ऑफ
एसोसिएशन, ठीक है, यानी कि डिक्लेरेशन ऑफ शेयर होल्डिंग, डिक्लेरेशन ऑफ शेयर होल्डिंग। जैसे कि अगेन वही एग्जांपल लेते हैं, आपका 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से, ठीक है, आप कितने शेयर, कितना इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं मार्केट से, 25,000 शेयर हैं आपके पास, तो यानी कि आप सॉरी 2.5 लाख शेयर है, ठीक है, तो 2.5 लाख शेयर के हिसाब से आप केवल और केवल शेयर होल्डिंग कितनी, यानी कितना इन्वेस्टमेंट, कितने शेयर बेच सकते हैं आप, केवल और केवल 25 लाख रुपीस के शेयर बेच सकते हैं आप। 25 लाख रुपए से ज्यादा का शेयर होल्डिंग नहीं कर सकते। एंड ये एक एग्जांपल है, आपका जितना भी है आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग आप वो चीज कैपिटल क्लॉज में लिखेंगे कि हमारा जो शेयर होल्डिंग है वो इस अमाउंट पे रहेगा एंड उस अमाउंट से एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है। इतनी सारी चीजें हो जाने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में साइन होते हैं डायरेक्टर्स के, और डायरेक्टर्स कैसे बनते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स को परचेज करके। तो अगर कंपनी प्राइवेट है, मैंने आपको प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी के बारे में बताया था, ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उस पे जो साइन होंगे वो कितने होंगे, वो 2 डायरेक्टर्स के होंगे, ठीक है। और अगर कंपनी पब्लिक है तो उस पे जो साइन होंगे वो कितने होंगे, एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स के होंगे, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जनरल डॉक्यूमेंट अवेलेबल फॉर पब्लिक दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 56 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर 5 क्लॉज होते हैं। पहला क्लॉज नेम क्लॉज, जिसमें कंपनी के नेम की इन्फॉर्मेशन होती है। सेकंड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसमें कंपनी का एड्रेस रिक्वायर्ड होता है, नॉट द एग्जैक्ट वन, बट आफ्टर द साइनिंग अप एंड सबमिशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन 30 डेज में आपको एग्जैक्ट एड्रेस देना होता है, कहाँ पे, रजिस्टर ऑफ द कंपनीज में। थर्ड होता है आपका object clause, means whatever the reason that company is formed and whatever the activities they are going to undertake in this company, and any company cannot go beyond the criteria of objective clause of memorandum of association, ठीक है। and the fourth one is liability clause. in this the liability is shared with the government, that what is unpaid liability of their firm, ठीक है। and the fifth is capital clause. capital clause means the company will have to declare the shareholding, that what amount they are going to create with the help of shareholding, and a company cannot go beyond that particular amount that is stated in the share, that is stated in the memorandum of association, ठीक है। तो ये था आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड उस पर साइन करते हैं डायरेक्टर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज, 2 डायरेक्टर्स, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज 7 डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इसी के साथ आपका मेमोरेंडम एसोसिएशन खत्म होता है। तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वी आर गोइंग टू कवर अप इज द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ वेरी वंडरफुल डे।